مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ اور میرے عزیزوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، میں یوٹیوب پر مختلف سرمنز جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر کے بہت سے بہن بھائیوں کے لیے جو اینڈرائیڈ کا استعمال کرتے ہیں ان کے لیے ایک مددگار کے طور پر ان پیغامات کو بھیج رہا ہوں تاکہ آپ ان پیغامات کو سنیں اور کلام حق سے آپ برکت حاصل کریں۔ آج جو خاص ایک ٹاپک جو خدا نے میرے دل میں ایک بوجھ کے طور پر رکھا ہے تاکہ میں اپنی مسیحی قوم کو کلام سے روشناس کرواؤں، وہ ہے کہ تم ایک شاہکار ہو۔ یو آر اے ماسٹر پیس۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ ہم بیکار لوگ ہیں، ہماری کوئی قدر و منزلت نہیں ہے، وہ اکثر کمیونٹی میں اکیلے رہتے ہیں، یا وہ سوچتے ہیں شاید لوگ ان کی قدر نہیں کرتے، یا وہ سوچتے ہیں کہ وہ بہت حقیر ہیں، بہت ادنا ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، آج کلام مقدس خاص طور پر آپ کے لیے ہے۔ میں آپ کی مدد کرنا چاہوں گا کلام مقدس میں سے کہ یو آر اے ماسٹر پیس۔ تم ایک شاہکار ہو، آپ جیسا کوئی نہیں ہے۔ اور کلام مقدس میں سے آج ہم سیکھیں گے، کلام مقدس میں سے آج ہم پڑھیں گے، اور افسیوں کا خط باب نمبر 2 آیت نمبر 10 میں لکھا ہے، کیونکہ ہم اسی کی کاراگری ہیں اور مسیح یسوع میں ان نیک اعمال کے واسطے مخلوق ہوئے ہیں جن کو خدا نے پہلے سے ہمارے کرنے کے لیے تیار کیا تھا۔ آمین۔ یہ کتنی خوبصورت آیت ہے میرے عزیزوں، اور خاص طور پر میں آج ان نوجوانوں سے بھی مخاطب ہوں، ان بیٹیوں سے، ان بیٹوں سے جو یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہے، لیکن کلام میری بیٹی، لیکن کلام میرے بیٹے آپ کے لیے آج فرماتا ہے کہ تم اس کی کاراگری ہو، اور مسیح خداوند میں ہمیں ان نیک اعمال کے واسطے ہمیں خلق کیا گیا ہے۔ اس لیے آپ کبھی نہ سوچیں کہ آپ ریجیکٹڈ ونز ہیں۔ آپ موسٹ پریشیس لوگ ہیں، قیمتی لوگ ہیں، اور آپ کی قیمت خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر ادا کی ہے۔ کلام میں لکھا ہے کہ اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے۔ وہ بے گناہ تھا، اس کی ذات اقدس میں کوئی گناہ نہ تھا، لیکن ہمارے گناہوں کی خاطر مسیح خداوند صلیب پر چڑھے۔ اس لیے ایمانداروں، خدا کے لوگوں، یو آر اے ماسٹر پیس آف گاڈ۔ ہمیشہ اس بات پر فخر کریں کہ آپ خدا کے شاہکار ہیں۔ آپ کو خدا نے ایک کاراگری کے طور پر پیدا کیا ہے۔ آپ دنیا کے بیکار لوگ نہیں ہیں۔ اگر آپ کے نام کے ساتھ کرسچن لگتا ہے then you are a most precious ones۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے، اور آج ہم ان ساری باتوں کو سیکھیں گے کہ ہم کیسے خدا کا شاہکار ہیں، ہم کیسے موسٹ پریشیس ہیں۔ تو نمبر 1 جو میں سب سے پہلے آپ کو سکھانا چاہتا ہوں، you are important ones، یعنی آپ اہم ترین لوگ ہیں، VIPs ہیں آپ۔ اور کلام مقدس پہلا پطرس 2 باب اور 9 آیت میں لکھا ہے، لیکن تم ایک برگزیدہ نسل، شاہی کاہنوں کا فرقہ، مقدس قوم، اور ایسی امت ہو جو خدا کی خاص ملکیت ہے، تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کرو جس نے تمہیں تاریکی سے اپنی عجیب روشنی میں بلایا ہے۔ آمین۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ آپ یقین کیجئے، یو آر امپورٹنٹ۔ جتنے بھی آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ اس بات پر فخر کیا کریں کہ خدا کا کلام، بائبل مقدس، خدا کے فرمودات، خدا کے احکامات، خدا کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ میرے عزیزو آپ سے پکار کر کہتے ہیں یو آر امپورٹنٹ۔ آپ اہم ترین ہیں۔ کبھی اپنے آپ کو غیر اہم نہ سمجھیں۔ اور یہاں پر اس کلام مقدس میں آیت میں لکھا ہے کہ تم برگزیدہ نسل ہو،
आप शाही काहिनों का फ़िरका हो। हमारा यीशु बादशाह है और बादशाह के घराने के लोग शहज़ादे और शहज़ादियाँ होती हैं। आप अहम तरीन लोग हैं, आप जैसा कोई नहीं है। आप दुनिया में नज़र दौड़ा लें, आपकी कीमत सबसे बढ़कर है, क्योंकि आपके बदन पर मसीह का खून है। हालेलुया। और यहाँ पर लिखा है कि आप मुकद्दस कौम हैं, आप पाक तरीन लोग हैं, आप पवित्र लोग हैं और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की ख़ास मलकियत है। यू आर बिलोंगिंग टू गॉड। आप खुदा की ख़ास मलकियत हैं। आप दुनिया के लोग नहीं हैं, बल्कि खुदा की फैमिली हैं, खुदा का ख़ानदान है। और मेरे अजीज़ों, मैं आज आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, अगर आप किसी भी वजह से आप मायूस हैं, आप परेशान हैं, आप दुखी हैं, आप अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, तो ये पैगाम आज आपके लिए है कि आप खुदा की नज़र में अहम तरीन लोग हैं। आप जैसा कोई नहीं है। और मेरे अजीज़ों, अगर हम दूसरे पॉइंट को देखें कि तुम शाहकार हो, तुम मास्टरपीस हो खुदा का, तो दूसरे नंबर पर यू आर फॉरगिवन वंस। आप मुआफ़ किए गए लोग हैं। बहुत से लोगों को आज तक मुआफ़ी नहीं हुई। मुआफ़ी उनके लिए है जिनका ईमान मसीह खुदावंद पर है। हालेलुया। और कलाम मुक़द्दस ज़बूर 103 और उसकी आयत नंबर 12 यानी 12वीं आयत में लिखा है, जैसे पूरब पश्चिम से दूर है, वैसे ही उसने हमारी खताएं हमसे दूर कर दी। इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है। आमीन। हालेलुया। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह के वसीला से हमारे तमाम गुनाह मिटा दिए। हमारे गुनाह कबीरा, हमारे गुनाह सगीरा, हमारे किरमजी गुनाह, जिन्हें हम गुनाह भी नहीं तस्लीम करते, लेकिन वो खुदा की नज़र में गुनाह होते हैं। खुदा ने उन सब गुनाहों को अपने बेटे यीशु मसीह की कुदरत के वसीला से, उसकी लाजवाल कुर्बानी के वसीला से हमारी ज़िंदगियों से निकाल दिया। हालेलुया। हम मसीह के खून से धुले हुए हैं। और कलाम मुक़द्दस में लिखा है, जैसे पूरब पश्चिम से दूर है, ऐसे ही हमारे गुनाह मसीह खुदावंद की कुदरत के वसीला से हमसे दूर हैं। हालेलुया। हम पाक किए गए लोग हैं। उसने हमारी कीमत अदा की है। इसलिए अजीज़ भाइयों, अजीज़ बहनों और ख़ास तौर पर नौजवान बेटे और बेटी, सुन लें, आपके गुनाह जो हैं मसीह खुदावंद ने आज से 2000 साल पहले मिटा दिए हैं। और तीसरी अहम बात, यू आर द मास्टरपीस ऑफ गॉड, और वो ये है, यू आर न्यू क्रिएशन। तुम नई मखलूक हो। और कलाम मुक़द्दस दूसरा करंथियों 5वें बाब की 17वीं आयत में लिखा है, जैसे पूरब पश्चिम से दूर हैं, वैसे ही उसने हमारी खताएं हमसे दूर कर दी। और आगे अगर देखें तो लिखा है, इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है। हमने अपनी पुरानी इंसानियत को तोड़ दिया। हमने पुरानी आदत को, पुराने रहन सहन को, पुराने तौर तरीकों को निकाल कर मसीह खुदावंद के पीछे हो लिए हैं। हालेलुया। इसलिए ईमानदार भाइयों, ईमानदार बहनों, आप मसीह में नए मखलूक हैं। और जब आपने मसीह खुदावंद में नया जन्म लिया था, तब से आपकी पुरानी इंसानियत उसके पाक और पवित्र खून में भस्म हो चुकी है और अब आप नई मखलूक बन चुके हैं। आप मसीह में न्यू क्रिएचर हैं। हालेलुया। और अगली बात जो मैं आज आपको सिखाना चाहता हूं कि यू आर अ मास्टरपीस ऑफ गॉड, तुम खुदा का शाहकार हो, वो ये है कि यू आर आल्सो प्रोटेक्टेड वंस। आप महफूज तरीन लोग हैं। हालेलुया। कलाम मुक़द्दस ज़बूर 91 में हमने सीखा है कि तुझ पर कोई आफत नहीं आएगी और कोई वबा तेरे खैमा के नज़दीक ना पहुंचेगी। क्यों? क्योंकि उसने तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म दिया है, तेरी सब राहों में हिफाजत करें। हालेलुया। और कलाम मुक़द्दस में लिखा है ज़बूर 121 में और आयत नंबर 3 में, वो तेरे पाँव को फिसलने ना देगा, तेरा मुहाफ़िज़ ऊँघने का नहीं। हालेलुया।
मेरे अजीज़ों, आपके सर्कमटेंसेस, आपके हालात, आपकी सिचुएशन कैसी भी क्यों नहीं है, आपका खुदा आपका मुहाफ़िज़ है, आपका खुदा आपका रखवाला है, आपका खुदा आपका रहनुमा है, और वो ऊँघने का नहीं है, वो हर वक्त हर लम्हा आपकी फ़िक्र करता है। और कलाम में लिखा है कोई आफत आप पर नहीं आएगी, क्योंकि उसने अपने फरिश्तों को आप पर सायाजन किया हुआ है। हालेलुया। अगली बात जो हम सीखेंगे मेरे अजीज़ों, कि आप खुदा का शाहकार हैं, यू आर अ मास्टरपीस ऑफ गॉड, और वो है यू आर अ फैमिली ऑफ गॉड। आप खुदा का ख़ानदान हैं। बेशक हम दुनवी तौर पर ये फ़ख्र करते हैं मैं फ़लाँ ख़ानदान से हूँ, मैं फ़लाँ ख़ानदान से हूँ, लेकिन हमारी जो सबसे बड़ी पहचान है, वी आर द फैमिली ऑफ क्राइस्ट। हालेलुया। हम मसीह का ख़ानदान हैं। और इफसियों के ख़त दूसरे बाब की 19वीं आयत में लिखा है, बस अब तुम परदेसी और मुसाफिर नहीं रहे, बल्कि मुक़द्दसों के हम वतन और खुदा के घराने के हो गए हैं। हालेलुया। हमारा ताल्लुक मसीह का ख़ानदान है। हालेलुया। आप जब भी कभी अपना तारुफ करवाएं, आप जब भी कभी अपना इंट्रोडक्शन दें, तो कहें मेरा ताल्लुक मसीह के ख़ानदान से है। हालेलुया। मसीह खुदावंद आपकी प्रोटेक्शन करेगा। अब आपका खालिस्तन ताल्लुक जो है मसीह के ख़ानदान से है। हालेलुया। यू आर द फैमिली ऑफ गॉड। आप खुदा के ख़ानदान में से हैं, आप खुदा की फर्जंदियत में हैं, आप खुदा के बेटे हैं, आप खुदा की बेटियां हैं। हालेलुया। अगली बात जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि आप खुदा का शाहकार हैं बहनों, आप खुदा का शाहकार हैं मेरे भाइयों, कि आप यू आर यूनिक वंस, आप मुनफरद लोग हैं, आप जैसा कोई नहीं है। इस बात पर फ़ख्र करें। और कलाम मुक़द्दस ज़बूर 119 और उसकी आयत नंबर 13 में लिखा है, मैंने अपने लबों से तेरे फरमूदा अहकाम को बयान किया। हालेलुया। ये कितनी फ़ख्र की बात है। आपके पास खुदा का ज़िंदा कलाम है। आज दुनिया में बहुत से लोग हैं जो खुदा के ज़िंदा कलाम मुक़द्दस से महरूम हैं। आपके पास सच्ची हकीकत है, आपके पास वो हकीकत है जो ज़िंदगियों को बदल देती है। हालेलुया। आपके पास खुदा के अहकामात हैं, आपके पास खुदा के फरमुदात हैं, आपके पास खुदा की बातें हैं। हालेलुया। इसलिए ईमानदारों, आप यूनिक हैं, आप मुनफरद हैं। और सातवीं बात जो आज हम सीखेंगे, यू आर द मास्टरपीस ऑफ गॉड। आप खुदा का शाहकार हैं। यू आर क्रिएटेड फॉर पर्पस, यानी आप बा मकसद खलक हुए हैं। हालेलुया। अगर हम यिर्मयाह की किताब में से देखें और उसके बाब नंबर 29 आयत नंबर 11 को देखें, तो वहाँ पर लिखा है, क्योंकि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूँ। और आगे लिखा है, खुदावंद फरमाता है, यानी सलामती के ख्यालात, बुराई के नहीं, ताकि मैं तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूं। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, खुदा ने हमें बामकसद पैदा किया है। हमारा इस दुनिया में जो मकसद है वो ये है कि हम उसकी इबादत करें, उसकी बंदगी करें, उसके ख़ानदान में शामिल हों। अगर आज भी हम इन तमाम मकासद में नाकाम हैं, तो मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, नौजवान बेटों, नौजवान बेटियों, मैं आपको दावत देता हूँ, आए मसीह के ख़ानदान को ज्वाइन कीजिए, आए किसी खादम के साथ मिलाप कीजिए, आए किसी चर्च के साथ मेरे अजीज़ों हम जुड़ जाएं और कलामे हक और उसकी कुदरत के बारे में और ज़्यादा सीखें। मैं ख़ास तौर पर उन नौजवानों को आज ये बताना चाहता हूँ कि खुदा ने मेरी बेटी, मेरे बेटे, आपको बामकसद खलक किया है। खुदा का एक ख़ास मकसद है आपकी ज़िंदगी में। आप बेकार ज़िंदगी ना गुजारें, आप इधर उधर की ज़िंदगी ना गुजारें, अपने खुदावंद को फोकस कीजिए अपनी ज़िंदगी में। और कलाम मुक़द्दस में लिखा है, वो हमारे ख्यालात को जानता है, यानी सलामती के ख्यालात। खुदा ये नहीं चाहता कि हमारे अंदर बुराई के ख्यालात हों, कि हमारी सोच, हमारे ख्यालात नेक हों। हालेलुया। और आखिरी बात जो मैं आज
میرے نوجوان بہنوں بھائیوں آپ کو سکھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یو آر وکٹوریس. ہاللیلویہ. آپ شاہکار ہیں، آپ وکٹوریس ہیں، آپ فاتح ہیں. مسیح خداوند نے موت پر فتح پائی، موت کو للکارا، موت تیرا ڈنگ کہا، اور تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھ کر میرے عزیزو ہم سب کو فاتح قرار دیا. ہاللیلویہ. اور آج ہم دیکھیں گے کہ ہم وکٹوریس ہیں مسیح خداوند میں، ہم فاتح ہیں مسیح خداوند میں. پہلا یوحنا 5ویں باب کی 3 سے 5ویں آیت میں لکھا ہے، جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ دنیا پر غالب آتا ہے، اور وہ غلبہ جس سے دنیا مغلوب ہوئی ہے ہمارا ایمان ہے. اور آگے لکھا ہے، دنیا کا مغلوب کرنے والا کون ہے سوا اس شخص کے جس کا یہ ایمان ہے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے. ہاللیلویہ. ایمانداروں، خدا کے لوگوں، خدا نے آپ کو شاہکار پیدا کیا ہے، خدا نے آپ کو نایاب پیدا کیا ہے، خدا نے آپ کو پریشیس پیدا کیا ہے. یو آر دا ماسٹر پیس آف گاڈ. اور یہاں پر کلام مقدس میں لکھا ہے خدا نے آپ کو فتح سے بڑھ کر غلبہ عطا کیا ہے. ہاللیلویہ. اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ دنیا میں خدا اس شخص کو فتح عطا کرتا ہے جو یسوع مسیح کو اپنا پربھو، اپنا نجات دہندہ، اپنا آقا، اپنا خداوند اور اسے خدا کا بیٹا تسلیم کرتا ہے. ایمانداروں، خدا کے بیٹوں، میں آج آپ کو یہ چیلنج کرنا چاہتا ہوں، مایوسی کو اپنی زندگی سے نکالیں، پریشانی کو اپنی زندگی سے نکالیں، اپنے آپ کو حقیر نہ جانیں. یو آر دا ماسٹر پیس آف گاڈ. اپنے آپ پر فخر کیجئے کہ آپ کا ایمان توکل مسیح خداوند پر ہے جس نے موت پر فتح پائی. آپ خدا کا شاہکار ہیں. آپ کو خدا نے اہم ترین پیدا کیا ہے. آپ کے گناہ خدا نے معاف کر دیے ہیں. آپ کو خدا نے نئی مخلوق پیدا کیا ہے. آپ خدا کے پوتر خون میں محفوظ ہیں، اور آپ خدا کے خاندان کے افراد ہیں، اور آپ کو خدا نے سب سے منفرد پیدا کیا ہے، اور آپ کو خدا نے با مقصد پیدا کیا ہے، اور سب سے بڑھ کر آپ کو خدا نے فتح سے بڑھ کر غلبہ عطا کیا ہے. ایمانداروں، آئیں یسوع کی طرف لوٹیں، وہ آپ کا منتظر ہے. خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے. آمین. ہاللیلویہ.